So in previous classes we have seen, previous lectures we have seen bones. We are studying bones osteology. In this series we have seen skulls of different species around the world. Those are Caucasians, Europeans, Caucasians or Europeans or whites, we can say Asians or Mongolians, and Africans or Negroid we have seen. And we have also seen the number of bones present in human body. What does skeletal system provides? They give support, protection and structural support to the organisms. We are human, and for us the skeletal system performs these functions: protection, support, structure. Okay. Now we have discussed already types of bones, skeletal system types. Those are the main structure which provides humans basic support, that is the axial skeletal system, and the skeletal system which supports the main support system is appendicular skeletal system. We have already discussed. Now we are discussing bones and cartilage, the main difference between bone and cartilage. If we see, both bone and cartilage are present in our body. Bones 206 and cartilage is also present. Maximum bone sanding in cartilage, giving a smooth surface to the bone for easily movement of the bone. All the bones of the body are not movable. Those bones which move, they ends in cartilage, so that there will be a good friction, there will be good movement of the two bones. Suppose this is two big bones, and in between this lies cartilage. This would be a cartilage. This is like this. Now bone is the strongest thing in our body. We all know bones are very stronger thing in our body. They are non-flexible connective tissues. Both are connective tissues. Bone and cartilage both are connective tissues. Bones are very strong, non-flexible. They can't be bent. They can't flex. We can't move bend the bone. We can't flex और हम लोग झुका नहीं सकते. Those are strong. Cartilage are flexible. Cartilage are flexible connective tissues. Bones are non-flexible connective tissue. Bones are hard. They are having hard matrix made up of protein casein. Bones में कौन सा protein है? Casein protein is found in bones, and matrix is made up of chondrin protein in cartilage. ठीक है. Sugar is also present in cartilage. Protein है chondrin, sugar and calcium carbonate is present. In bones, matrix is hard and having casein protein, calcium carbonate and calcium phosphate. Remember, calcium phosphate is not present in cartilage. That's why they are soft and flexible. अगर वहाँ भी present होता तो वो move नहीं कर सकता. So in cartilage, calcium phosphate is absent. So calcium phosphate is present in bones. Now it can be bent. Cannot be bent. Bones cannot be bent. Cartilage can be bent. Blood vessels are present in bone. In cartilage, blood vessels are not present. You have seen when bone gets fractured, जब भी bone टूटता है तो वो heal हो जाता है. We give POP, कास्ट देते हैं और कहते हैं कि इसको move मत करो, ये जुड़ जाएगा. Bones can be healed. How it is healed? Because blood vessels है तो सब nutrients उसमें जाता है, oxygen जाता है, blood supply अच्छा है तो that is healed. But cartilage, blood vessels are absent. So अगर cartilage टूटता है तो वो heal नहीं हो सकता, repair नहीं हो सकता. So because blood vessels है ही नहीं तो nutrient कैसे जाएगा, oxygen कैसे जाएगा, तो वो repair नहीं होगा. Cartilage don't have blood vessels, bones have blood vessels. और blood vessels है तो canalically connection present between bone cells, that is osteocytes. Osteocytes है ना, bones कैसे जो cells है osteocytes, वहाँ पर canalically system present है. अब यहाँ पे blood ही नहीं है cartilage में तो canalically system present नहीं हो सकता. In between chondrocyte. Chondrocytes is cell of cartilage and osteocyte is a cell of bone.
बोन का जो सेल है वो ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज का सेल कॉन्ड्रियोसाइट्स, और कॉन्ड्रियोसाइट में प्रोटीन जो है कॉन्ड्रीन, एंड बोन्स में प्रोटीन कैशिन, जो मिल्क में होता है कैशिन प्रोटीन, इसलिए बोलते हैं ना दूध पीना चाहिए, टेक मिल्क फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। फिर क्या है, वुल्केमान कैनल प्रेजेंट। वुल्केमान कैनल क्या है, यह ब्लड वेसल इज प्रेजेंट, ब्लड वेसल इज एब्सेंट, कैनालिकुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, कैनालिकुलर कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द ऑस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट सेल्स है तो यहाँ पे कैनालिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ये है कैनालिकुलर सिस्टम। यहाँ पे ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो कॉन्ड्रियोसाइट जो कि सेल है कार्टिलेज का, वहाँ पे कैनालिकुलर सिस्टम नहीं। हार्वेसियन कैनाल, तो ये जो सेल्स है ना इसके सेंटर में ये हार्वेसियन कैनाल है, हार्वेसियन कैनाल सिस्टम, यहाँ से ब्लड वेसल्स एंटर करता है बोन्स में, तो हार्वेसियन कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन बोन्स। यहाँ पे ब्लड ही नहीं है तो हार्वेसियन कैनाल भी प्रेजेंट नहीं है। वुल्केमान कैनल इज ऑल्सो प्रेजेंट, वुल्केमान कैनल भी वही है, ब्लड वेसल सिस्टम, ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल सिस्टम, वुल्केमान कैनल इज प्रेजेंट। कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स ही नहीं है तो वुल्केमान कैनल भी नहीं है। बोन कैन बी बेंट, बोन कैन नॉट बी बेंट, इसको हम लोग झुका नहीं सकते, जब भी झुकाने की कोशिश करेंगे इट विल ब्रेक डाउन। बोन व्हाट डज दे दी, व्हाट फंक्शन क्या है, तो दे गिव अ शेप, स्केलेटल सपोर्ट टू द बॉडी। ठीक है, बोन्स नहीं होगा तो शेप होगा नहीं होगा, जो हम लोग के हैंड में जो शेप है, जो भी हमारे फेस में शेप है, बोन नहीं होने से शेप नहीं होगा। एंड व्हाट द कार्टिलेज डू, कार्टिलेज गिव्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी एंड ऑल्सो स्मूदन्स द बोन सर्फेस एट जॉइंट। ये नहीं होगा तो बेंडिंग नहीं होगा। सपोज दिस, ये जो पिंक कलर है ये बोन है और जो ब्लैक कलर है ये कार्टिलेज है, तो ये ये है डिस्क, ये है इनवर्टिब्रल डिस्क, इनवर्टिब्रल डिस्क, इनवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट बिटवीन दी स्पाइन्स, वर्टिब्रा के बीच में जो प्रेजेंट है डिस्क उसको इनवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट जो होता है ना बोन्स का वो इजी हो जाता है, नहीं तो फिर कोई भी फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट हम लोग नहीं करते, लेफ्ट टू राइट जो हम लोग बैठते उठते दौड़ते, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। दिस इज वी कैन परफॉर्म दिस बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज, दिस सपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी एंड ऑल्सो स्मूद इन द बोन सर्फेस। जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं जैसे यहाँ पे जो ब्लैक से बनाए हुए हैं बिग बोन्स, इनके बीच में कार्टिलेज होगा ऐसे, तो कार्टिलेज है तो क्या होगा, दोनों का जो ऐसे करके जो मूव करते हैं ग्लाइडिंग आराम से हो सकता है और वहाँ पे मूवमेंट इजीली हो जाएगा, तो इसीलिए कार्टिलेज होता है बिटवीन द लॉन्ग बोन्स। नाउ ग्रोथ, बोन ग्रोथ कैसे होगा, बाय डायरेक्शनल, कैन बी ग्रो फ्रॉम अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, बट इन कार्टिलेज ग्रोथ इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अब बोन्स कैसे होता है, कैन बी कॉम्पैक्ट, कैन बी स्पॉन्जी, जैसे लाइक बर्ड्स हैव वेरी लाइट बोन सो दैट दे कैन फ्लाई, बट मैमल्स एनिमल जो लैंड पे होते हैं उनकी इतनी बोन्स इतना डेंस होता है, उनका इतना स्पॉन्जी नहीं होता। तो बोन्स डेंसिटी, यू हैव हर्ड द टर्म बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी है तो फिर उसका अच्छा होता है, जितना जिसका बोन डेंसिटी है तो मीन्स कैल्शियम कंटेंट उसका उतना ही अच्छा है, वो उतना ही हेल्दी है। तो बोन्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोन कैन बी लॉन्ग बोन, एग्जाम्पल फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, अल्ना, रेडियस, इट नंबर 90। शॉर्ट बोन्स are 28 in number, example carpal. Flat bones are 36 in number, example is sternum, skull. Irregular bones are 48 in number, example is spine. Spine है ना irregular ऐसा. Sesamoid, example patella. Cartilage, examples 3 types होते हैं, hyaline, fibro and elastic. Hyaline में होगा ribs, nose, larynx, trachea. Ribs, nose, larynx, trachea. Fibro में होगा invertebral disc, joint carpal. Invertebral disc, joint carpal and joint कैप्सूल लिगामेंट। जो लिगामेंट में कैप्सूल के पास जो लिगामेंट होता है जॉइंट्स में, वहाँ पे ये होगा फाइब्रो कार्टिलेज। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में
जॉइंट कैप्सुलर लिगामेंट्स में। अब इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ होगा? इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होगा एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना, जहाँ पे पियर्सिंग कराते हैं। एक्सटर्नल ईयर, एपिग्लॉटिस एंड लैरिंग्स। सो हाइलिन में रिब्स, नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया। फाइब्रो में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जॉइंट कैप्सूल लिगामेंट्स, एंड इलास्टिक में एक्सटर्नल ear, that is pinna, epiglottis and larynx. So here we complete the difference between bones and cartilage. You can remember all the points. This much you have to know. इतना तो याद रखना है. Examples ये हो गया. If we calculate this 90 plus 28 with 36, 48 4 तो होगा total 206 bones.